Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umer. As in previous lecture, we discussed in detail partition coefficient and its significance in the field of pharmaceutics. Now in today's lecture, we will discuss the important application of partition coefficient. We have basic two applications which are very important. We will discuss number one is pharmacokinetics and the other one is pharmacodynamics. We will discuss both of the application in detail. So number one is pharmacokinetics. So what is pharmacokinetics? Pharmacokinetics means what the body does to the drug. Whenever we take a drug, how the body will respond to that drug. It is actually pharmacokinetics. Now there are basic four parameters which explain the process of pharmacokinetics. We can identify it by ADME. ADME. Now what is ADME? It is actually absorption, distribution, metabolism, and finally excretion. Now these are the basic four parameters which explain the pharmacokinetic process. Now we will explain this process with the help of this diagram. Let's suppose we take a drug orally. Whenever we take a drug orally, it will reach to the GIT GIT system. Whenever it reaches the GIT system, it will pass the lipid bilayer. Now, in order to pass the lipid bilayer, the drug should be lipophilic. अगर ड्रग लिपोफिलिक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो लिपिड बाइलेयर को या इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगी. हमने ड्रग को ले लिया ओरली. ड्रग को ओरली लेने के बाद ड्रग जीआईटी सिस्टम में चला गया. सही है. जब वहां पर चला गया तो अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी एब्जॉर्प्शन या उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिफाइन करेगी. अब जब we know that GIT membrane has a lipid bilayers. In order to pass the lipid bilayer, the drug should be lipophilic. अब drug lipophilic होगा, it means that the drug has greater P log value. Whenever the drug has greater P log value, it has lower aqueous solubility. Greater the P log value, greater the P log value, greater will be the lipophilicity. Lower the P log value, decrease will be the lipophilicity. जब कभी भी हम उसका P log वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी. तो लिपिड बाइलेयर से पास होने के लिए इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है कि ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए. जब ड्रग लिपोफिलिक होगा इसका मतलब है कि इसका पी लॉग वैल्यू ज्यादा है. पी लॉग वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि इसकी इक्वस सॉल्युबिलिटी कम है. जब इक्वस सॉल्युबिलिटी कम है तो इसके बाद जब इसकी इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी. जब लिपिड बाइलेयर पास होगा फिर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अब डिस्ट्रीब्यूशन दो जगहों पर होती है, एक ब्लड में होती है और एक टिश्यू में होती है. इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग टू द टिश्यू, द ड्रग शुड बी लिपोफिलिक. अगर ड्रग लिपोफिलिक नहीं होगा तो टिश्यू में उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, लिपिड बाइलेयर पास नहीं करेगा. तो उसका मतलब है कि ड्रग हैज ग्रेटर पी लॉग वैल्यू. Whenever the drug has greater P log value, it will have greater tissue transport.
तो टिश्यू ट्रांसपोर्ट के लिए पी लॉग का ग्रेटर होना जरूरी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है हमें कि हमारे पास जो ड्रग की प्रॉपर्टी है वो लिपोफिलिसिटी है, लिपोफिलिक ड्रग है हमारे पास। सही है, तो इस तरह ये ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टिश्यू में। डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई जो डिपेंड करती है ड्रग की प्रॉपर्टी पे। अब यहां से फिर मेटाबॉलिज्म। रिमेंबर वन थिंग, ड्रग हैविंग greater P log value or drug which is lipophilic will greatly be metabolized in the liver. Lipophilic drug will be metabolized in the liver. तो ड्रग लिवर में आके मेटाबोलाइज हो जाएगा। अब यहां तक तो बात सही है कि ड्रग लिपोफिलिक है, सही, उसकी प्रॉपर्टी लिपोफिलिक थी, तो ड्रग मेटाबोलाइज हुआ, यहां से सारा ट्रांसपोर्ट होके लिवर में आ गया। नाउ द मेन point या main segment is excretion. Now the drug has to be excreted out from the body. The drug is basically excreted either through kidney or in the bile. For this purpose, the drug should be hydrophilic. The drug should have hydrophilic property. अगर drug की property hydrophilic होगी, it means that the drug has lower P log value. Whenever the drug has lower P log value, it will always have greater aqueous solubility. तो इस तरह ड्रग क्या होगा कि किडनी में आ जाएगा या बाइल में आ जाएगा और ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, इफ द ड्रग हैज ग्रेटर P log वैल्यू, इसका मतलब है कि ड्रग ने मेटाबोलाइज हो गया यहां पर लिवर में, लेकिन एक्सक्रीशन नहीं होगी। सही है, एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट हमें क्या बता रहा था? हमें यह बता रहा था कि हमारे पास जो ड्रग है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक दफा बॉडी में आ जाए, वो अपना काम कर जाए, तो उसके बाद वो फिर एक्सक्रीट भी हो जाए, मींस के लिपिड बाइलेयर को भी पास करे और फिर ब्लड में भी आ जाए। तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन के लिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना जरूरी है। अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक नहीं होगा तो ड्रग एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहेगा, या तो इफेक्ट शो नहीं करेगा या फिर टॉक्सिसिटी काज करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक के बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। के ड्रग हमारे पास हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। सही है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। What is pharmacodynamic? It means that what the drug does to the body. What the drug does to the body. Whenever we take a drug, how will the drug behave inside the body? It also depends upon the properties of partition coefficient, or it depend upon the hydrophilicity or lipophilicity. Whenever we take a drug, it reaches the systemic circulation. When the drug reaches the systemic circulation, now there is tissue penetration. For tissue penetration, the drug should have lipophilic property. As we explained here, कि टिश्यू पेनिट्रेशन के लिए ड्रग का पी लॉग वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, जो कि शो करेगा हमें कि उसकी इक्वस सॉल्युबिलिटी कम है। तो जब ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होगा तो टिश्यू पेनिट्रेशन के लिए क्या होगा कि ड्रग शुड बी लिपोफिलिक। सो इट मींस दैट अ लिपोफिलिक ड्रग हैव ग्रेटर टिश्यू पेनिट्रेशन। जब ग्रेटर टिश्यू पेनिट्रेशन होगा तो ड्रग पेनिट्रेट कर जाएगा टिश्यू में। सही है, जब टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाएगा तो आपके पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं आपके पास, जहां पर रिसेप्टर होंगे और ड्रग जाके बाइंड करेगा। अब रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, सही है, टिश्यू में पेनिट्रेशन होगी, ड्रग ने रिसेप्टर पे अटैच होना है। अब ये रिसेप्टर पे अटैच होना किस पे डिपेंड करेगा? ड्रग की प्रॉपर्टी पे करेगा। अगर ड्रग लिपोफिलिक होगा तो ड्रग लिपिड बाइलेयर को पास करेगा, टिश्यू पेनिट्रेशन होगी, जब टिश्यू पेनिट्रेशन होगी तो वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा। तो क्या शो कर रहा है हमें कि लिपोफिलिक ड्रग हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग। लिपोफिलिक ड्रग हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर टिश्यू बाइंडिंग। अब मसला यहां पर नहीं है, यहां पर तो ड्रग
अटैच हो गया, रिसेप्टर के साथ बाउंड कर गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए जरूरी है कि ड्रग अटैच कर जाए आपके रिसेप्टर पर। जब रिसेप्टर पे अटैच होगा तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। अब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन थेराप्यूटिक होगा या टॉक्सिक होगा, डिपेंड करेगा आपकी ड्रग की प्रॉपर्टी पे। अब यहां पर एज्यूम कर ले कि द ड्रग इज लिपोफिलिक, मोर लिपोफिलिक एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक, तो ये यहां पर जो बाइंडिंग होगी ड्रग की वो ज्यादा देर तक होगी। जब ज्यादा देर तक होगी इसका मतलब है कि मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम के लिए जब ये बाउंड करेगा तो इनिशियली ये थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जब बाउंडिंग इसकी ज्यादा हो जाएगी, फॉर लॉन्ग टाइम होगी, तो ये टॉक्सिक लेवल पे चला जाएगा। तो क्या शो रिस्पॉन्स बट मे हैव ग्रेटर टॉक्सिसिटी। अटैच तो हो जाएगा लेकिन अटैचमेंट के बाद जो रिस्पॉन्स है वो टॉक्सिक पे चला जाएगा। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं? इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे पास जो ड्रग की सिंथेसिस होगी या ड्रग की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऐसी होगी कि वो लिपोफिलिक भी हो ताकि ड्रग पिनिट्रेट कर जाए टिश्यू में, रिसेप्टर के साथ बाउंड कर जाए, और हाइड्रोफिलिक भी हो कि वहां से फिर अगर ड्रग की एक्सक्रीशन हो तो वो भी इजीली हो जाए, जैसा कि यहां पर किडनी या बाइल के जरिए उसकी एक्सक्रीशन हो। यहां पर आप याद रखें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ड्रग की इन दोनों में, फार्माकोकाइनेटिक में और फार्माकोडायनेमिक्स से, वो हमारे पास है हाइड्रोफोबिसिटी। क्या है? हाइड्रोफोबिसिटी डिफाइन करती है कि हमारे पास ड्रग किस तरह बिहेव करेगा। वो आइदर टॉक्सिक लेवल पे जाएगा या नहीं, टॉक्सिक लेवल पे नहीं जाएगा, एक्सक्रीड हो जाएगा। तो ये हमें डिफाइन करता है, हाइड्रोफोबिक फैक्टर जो ड्रग का होगा वो डिफाइन करेगा। एट द एंड जो हम कंक्लूड करेंगे या जो हम एज्यूम करते हैं जो वो ये है कि ड्रग शुड बी एज लिपोफिलिक एज हाइड्रोफिलिक। What does it mean? It means that the drug should have both the properties. It should be lipophilic as well as it should be hydrophilic. क्योंकि अगर एक दफा ये टिश्यू में पिनिट्रेट कर जाए, इफेक्ट शो कर जाए, तो वहां से इफेक्ट शो करने के बाद ये एक्सक्रीट भी इजीली हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.